بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء مرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو پیش کی ہے میں نے، آپ کے منظر عام پر جو ویڈیو آئی ہے آپ نے دیکھی ہے، اس میں کیا کچھ ہو رکھا ہے۔ ہمارا موقف بڑا طویل ہے، بڑا طویل اور صاف ستھرا۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ موضوع گفتگو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ قال عز وجل فی قرآن المجید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرستی کس قدر بڑھ چکی ہے، اور یہ فرقے کیا کیا مسجدوں کے اندر گھس کر کے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے معزز بھائی مونس بن اسلم محمد مونس صاحب موجود ہیں۔ اس موضوع پر طویل گفتگو ہوگی۔ جی بسم اللہ کیجیے، اللہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ آپ نے جس ویڈیو کی بات کی ہے، پہلے اس کی وجوہات کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ وجوہات یہ ہے کہ مسجد میں جمعے کے دن کچھ بچوں کا جھگڑا ہوا، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے آئے، اور بڑوں میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ وہاں ڈنڈے لاٹیاں بیلٹیں چلنے لگی، مسجد کا احترام نہیں کرا گیا، مسجد کے نظام کو دھرم بھرم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مسجد اللہ کا گھر نہیں تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا ان مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد میں ہو رہا ہے؟ بالکل پتہ تھا۔ پھر بھی اب لوگوں نے کیا کرا؟ ان لوگوں نے کیا کرا کہ وہاں کیپشن لکھا کہ وہابی اور اہل سنت میں ڈنڈے بجے لڑائی ہوئی ہے، اور اس پہ چٹکارے لینے والا کون؟ مسلمان تھا؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھے۔ کہہ رہے تھے جیتا کون لڑائی میں جیتا کون؟ کمنٹ میں تھا، دیکھ کے مزہ آیا، کمنٹوں میں بھرا ہوا، یہ کسی اور کو نہیں سنا رہا ہوں، مسلمان امت کو سنا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو جھگڑے والی مسجد کے اندر ہوئی پہلے تو، پھر کیا ہوا، اسی کے اندر کمنٹ سیکشن میں یہ لکھا گیا کہ وہابی اور اہل سنت والوں کے بیچ میں مناظرہ اور اس میں لڑائی ہو گئی، اور پھر کمنٹ سیکشن میں چٹکارے لینے والے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے، نان مسلم تھے۔ کیا کرا انہوں نے؟ چٹکارے لیے، جیتا کون؟ ڈنڈو بیلٹے بچی، جیتا کون؟ مرا کون؟ یہ ہے مسلمان امت کا حال اس وقت۔ یہ کیا اوقات رہ گئی ہے مسلمان کی؟ کیا رہ گئی ہے اوقات مسلمان کی اس ٹائم؟ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو، کچھ چیز آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو گھوشت کر دیں گے۔ پوری کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ ٹرین میں کیا حادثہ ہوا دیکھا ہے نا؟ آپ کو تو پتا ہے شہباز بھائی ٹرین میں کیا حادثہ ہوا ہے۔ چلو وہ جو شخص تھے وہ ایک پبلک پلیس پہ جو چیز لے کے جا رہا تھا وہ غلط ہے، نو ڈاؤٹ، ہم کہتے ہیں چلو غلط ہے یار، ایسے نہیں لے کے جانا چاہیے، کھلے میں بندہ پیک کر کے پوری طرح سے لے جائے۔ لیکن جس شخص نے یہ کام کرا، جو انہوں نے اسے مارا، اسے پیٹا، ان شخص کو، بزرگ آدمی ہے، داڑھی کا لحاظ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا تو مسلمان ہو کے یہ سب لے کے جائے گا؟ یہ اوقات ہے مسلمان کی۔ کیا ان کی اپنی کرتوت ہے نا، یہ ان کی اپنی کرتوت ہے۔ دیکھو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے ذلیل اس وقت قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ تھی، اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی چنندہ قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، یہ وہ لوگ تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر دوسرے کو مارتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ تم وہابی ہو، تم اونچی آمین بولتے ہو، تم رفعتین نہیں کرتے، یا تم رفعتین کرتے ہو۔ اب اتنے برے دن آ گئے ہیں ان کے، یہ ان کی اوقات ہے۔ کیا ان کو کون پوچھتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہ یہ آرمی میں، ان کو آرمی کے لیے ان کو نہیں چوز کرتے، نہ ہی کسی سرکاری دفتر میں بیٹھتے، بڑے عہدے پہ کسی بڑے عہدے پر نہیں ہے، نہ ان کی یہ ٹرین میں گوشت لے جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ان کو مارا جاتا ہے میرے بھائی، ان کی اتنی پٹ رہے ہیں پوری طرح پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اسرائیل میں دیکھیں آپ کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے کتنے مسلمان مر رہے ہیں، لیکن یہاں کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ میں اہل سنت ہوں، میں جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دوں گا دوسرے کو۔ ایک یار فلسطین کے اندر کا کانفلکٹ کیا پوری امت کا مسلمان کا کانفلکٹ نہیں ہے؟ بالکل کانفلکٹ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب فلسطین کا بچہ مر رہا ہے یا وہاں کا کوئی شخص شہید ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ کون سا اہل سنت کا، کون سا وہابیوں کا، کون سا دیوبندیوں کا، کون سا شیعہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کا مرا ہے؟
بالکل वहाबी का मरा है, देवबंदी का मरा है, शिया का मरा है, सारे कह रहे हैं मुसलमान उम्मत पिट रही है, बिल्कुल मुसलमान उम्मत का आदमी शहीद हो रहा है। ये बर्रे सगीर का ये मुसलमान इतना ज्यादा जलील हो चुका है, इसे ये नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त लड़ने का इख्तलाफी मौज़ूआत का वक्त नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। कोई शख्स आपके सामने कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल की सही हदीस पेश कर रहा है, तो वहां पर एक मोमिन की सिफत ही है, वहां पर वो कहे समीना व अताना। लेकिन हम कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई बिदअत गुमराही है, गुमराही जो है वो जहन्नम तक ले जाएगी, तो फिर वो सामने से कहते हैं नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो जुलूस निकालेंगे। ये देख रहे हैं आप इन लोगों की हालत। मैं आपको एक बेसिकली चीज बता रहा हूं आप, और ये 18-19 साल का लड़का है जिसको ना कोई दीन के बारे में मालूम है, ना कोई उसने कुरान हदीस का मुताला पढ़ा, वो कह रहा है मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। मुफ्ती साहब की क्या औकात है? अल्लाह के नबी हमें कुरान देकर के गए, मुफ्ती साहब देकर के गए थे। मुफ्ती साहब तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं। कुरान कह रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो। यहाँ तो फिरके पर होने पर फख्र किया जाता है। हदीस के अंदर, कुरान के अंदर जो हमें नाम मिला है वो मुसलमान है, ठीक है। साहबा ने जो अपने आप को कहा वो मुसलमान था। जब बाद में कभी जब जाकर के इख्तलाफ हुआ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट निकली है कि हम अहले सुन्नत, वो भी सुन्नत की वजह से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फॉलो करने वाले, दैट्स ऑल। ये कोई मनहज नहीं था, ये कोई फिरका नहीं था, साहबा कोई फिरका नहीं था, ग्रोह था, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों के 72 वो थे, मेरे उम्मत के 73 फिरके होंगे। पहली बात तो फिरके का लफ्ज है नहीं हदीस के अंदर, वहां तो ग्रोह का लफ्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 72 फिरके होंगे, 73वां ग्रोह जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा मेरे साथ, ठीक है। या ये कहते हैं नहीं जी बनाना वाजिब है, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया बनाओ तो बनाओ। जैसे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के कुर्ब क़यामत में एक औरत जो है वो बरहाना घूमेगी, तो तुम भी अपनी बेटियों को बरहाना घुमाओ, अल्लाह के रसूल की बात को पूरे करने के लिए बरहाना घुमाओ। ये इस तरीके से इन्होंने जान, मतलब अल्लाह के रसूल के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी ने वार किया है ना तो वो यहाँ का मुसलमान है जो बेल्टे निकाल करके ना मस्जिद के अंदर मार रहा है और वो कह रहा है कि हम इस फिरके से हैं, हम इस फिरके से, हम इस फख्र है और हम दूसरे के लिए बिल्कुल टॉलरेंस, जीरो। कुफर का फतवा खड़ा है। अगर आप किसी भी मतलब मान लेते हैं, मैं जो बात करने जा रहा हूं उस पर गौर दीजिएगा। हर कोई अपने आप को डिक्लेयर करता है कि हम हक पर हैं, बिल्कुल। तो या तो फिर कुरान झूठा है या हम में ईमान नहीं है या हम हक पे नहीं है। कुरान तो कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। या तो ईमान नहीं, हक पे नहीं, या कुरान झूठा, बिल्कुल। अब या तो तुम ये कह दो कि कुरान झूठा है या ये कह दो कि हम झूठे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ना तुम ये कहोगे कुरान झूठा है, ना तुम ये कहोगे कि हम झूठे हैं। क्या करोगे? अजी वो उनकी वजह से आ रहा है। भाई हर कोई अपने आप को पहले तो डिक्लेयर कर रहा है कि हम हक पर हैं। हक पर वो जो कुरान और सुन्नत पे चल रहा है, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हक पे वही होगा जो कुरान और सुन्नत पे चल रहा होगा। लेकिन ये फिरका वारियत ने इतनी आग लगा दी है कि मस्जिदों में बेल्टें चल रही हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त ये दौर नहीं रहा। इख्तलाफ को अभी के लिए साइड में कर देना बेहतर है कि अभी कुछ टाइम के लिए इसे साइड कर दिया जाए। उम्मत हर जगह पिट रही है शहबाज भाई, हर जगह पिट रही है। 60 के तकरीबन 57 से 58 मुल्क मुसलमान के हैं। फिलिस्तीन के एक बच्चे के आंसू नहीं पूछ पा रहा हूं, नहीं पूछ पा, एक माँ का रोना नहीं रोक पा रहा है। ये 57 मुसलमानी देश क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? चलिए मैं क्या कर रहा हूं? बॉयकॉट कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। दुआ कर सकता हूं अल्लाह के हुजूर पेश हो गए कि भाई तो बेल्ट चलाने वालों को जो कह रहे हैं अहले सुन्नत से हम सबको कुफ्र का फतवा देंगे, मारेंगे, दहशतगर्दी फैलाएंगे। कहां से? अल्लाह की कसम, किसकी तालीम है? ये अल्लाह के रसूल की तालीम है। ये अल्लाह के रसूल की तालीम। अल्लाह के रसूल तो ऐसे थे, अपने साहबा में ऐसी सुलह कराया करते थे। साहबा में इख्तिलाफ नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अल्लाह के रसूल के जमाने में इख्तिलाफ नहीं हुए? तो अल्लाह के रसूल तो साफ सारे मसले में खत्म हो जाते थे ना। बेल्टे कभी चलिए मस्जिद के अंदर, यही कर, क्योंकि ये तालीम किसकी है? ये अल्लाह के रसूल की तालीम नहीं है। ये 100 साल पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं, इनके बुजुर्ग वही सिखा कर गए इनको कि सीधा कुफर का फतवा दो, सीधा। जमात का काम, मैं कह रहा हूं, दुनिया का कौन सा इंसान कह देगा जमात का काम करने वाले को जो है वो कुफर कर रहे हैं? अपना माल लगाते हैं, अपनी जान लगाते हैं, जाते हैं मस्जिदों के अंदर लोगों को दीन सिखाने के लिए। ये चले आप उनके अंदर अगर कमी निकालना चाह रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि वो अच्छाई फैलाते हैं, बुराई से उनको कोई लेना देना ही नहीं, बुराई नहीं रोकते वो लोग, अच्छाई फैलाते हैं लेकिन बुराई नहीं रोकते। तो उसको उनको कुफर का फतवा। उनके बैग उठा के बाहर फेंकते थे, कहते हैं मस्जिद दो, मस्जिद हमारी गंदी हो गई, मस्जिद के अंदर कुत्ते दाखिल हो गए, मस्जिद नापाक हो गई, पलीत हो गई, मस्जिद दो, इनको भगाओ। उनको मारते, जलील करते, गालियां देते। और ये गाली देने वाली कौन सी उम्मत है? कौन से नबी की उम्मत है गाली बकती है? मिंबर रसूल पे बैठ के गाली बकती है।
एहतराम नहीं मिंबर रसूल पे बैठने का, गालियां बकती है, लानतें भेज रही है मिंबर रसूल पे बैठ कर। मैंने एक शख्स की वीडियो देखी, उसने तबलीगी जमात के लिए सारी वो टर्म बात बताई जो उसने बनानी थी। उसने कहा कि ये जमात तो मोमिन ही नहीं है क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल की बात ही नहीं करी। इन्हें अल्लाह की बात करी, ज़कात की, हज की, ये सारे बात करी इसने, लेकिन इसने अल्लाह के रसूल की बात ही नहीं करी। मुझे बड़ी सिंपल सी एक बात बताएं, कभी वो शख्स जमात में गया होगा जिसने ये बात करी है? मैं तो नहीं मानता नहीं गई हो, क्योंकि मैंने खुद जमात में लग के देखा है एक वक्त तक, सिवाय अल्लाह के रसूल की हदीस के, सिवाय सहाबा की सुन्नत के तरीके जो अल्लाह के रसूल को उन्होंने फॉलो करे, और कुछ नहीं होता। हाँ, ज़ईफ हदीसों पे भी अमल करते हैं, जो बात है वो है, गलत नहीं, जो बात है वो है, जो हक होगा वही बताएंगे। करते हैं वो ज़ईफ हदीसों पे अमल, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो अल्लाह के रसूल की बात ही नहीं कर रहे। किसी शख्स के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आपके पास लेकर आए। कोई शख्स किसी को नमाज के लिए बुला रहा है तो वो नमाज किसके तरीके में पढ़ना, अल्लाह के रसूल के तरीके में बुला रहा है। नबी तो घर जो छोड़ रहा है वो 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, वो किसके लिए छोड़ रहा है? हमारे नबी के तरीके को सिखाने के लिए तो छोड़ रहा है। मुंह उठा के कुछ भी बोल देने से, नफरत फैला देने से, या मुसलमान के हर मुसलमान को कुफर का फतवा बोल देने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये 2 टके के मुफ्ती होते हैं इनके, जो मिंबर रसूल पे बैठ करके गालियां दे रहे होते हैं। और उसको मिंबर रसूल क्यों कह रहे हैं आप? रसूल का मिंबर से गाली नहीं निकल सकती। रसूल का मिंबर तो वो है जहां से, मैं कह रहा हूं, खिदमत होती है दीन की, दीन आगे जाता है, दीन की असल खिदमत वहां से होती है।